Good morning, friends. Today we are going to start with next topic under free consent. But before referring that, we'll just revise what we have completed in the last class. In the previous class, we were referring about a free consent. I told you that free consent is divided in two parts. First part is consensus ad idem. Consensus ad idem. And a second part is free from 5 element, that is coercion, undue influence, third one is misrepresentation, fourth one is fraud, and last is mistake. So we have seen that as per section 10 essentials of valid contract, one of the essential element of a valid contract is there should be a free consent. Free consent is, first one is a consensus ad idem, that is there should be a similarity of mind. Contract should not be entered as regards to uncertainty, or you can call it as there should not be any kind of a bilateral mistake. Everything should be clear. There should be similarity of the mind, that is understanding every terms in a proper manner, that is called as a consensus ad idem. And second part of free consent is it should be free from a coercion, undue influence, misrepresentation, fraud and mistake. We have seen that if there is no free consent, that is if there is a bilateral mistake, there is no similarity of the mind, the contract will be void. However, in the second part, we have seen that if the contract is on account of a coercion or undue influence or misrepresentation, fraud, the contract will be voidable. Voidable at the option of aggrieved party. That means the aggrieved party will be entitled to avoid the contract if he feels that that contract is resulting in a loss, or otherwise he can enforce the contract, that is he can treat the contract as valid. However, in the last case, that is a mistake, the contract can be valid or the contract can be void. We'll see that in detail in the next lecture. So we have already completed with coercion. Coercion में अपन ने देखा है, what we have seen under coercion is committing or threatening to commit any act which is forbidden by the Indian Penal Code, or detaining or threatening to detain any property or documents of the property. And what is an object? The object is to force the other party to enter into a contract. In this case, the contract will be voidable. आप किसी को forcefully दड़ा के, धमका के, थ्रेटनिंग करके, किसी को किडनैप करके आप कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर्ड नहीं करवा सकते हो. एंड सेकेंड पार्ट, undue influence, we have seen that you cannot use your position to dominate the will of the other for the purpose of obtaining an unfair advantage. आप आपके पोजीशन का नाजायज इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, undue इस्तेमाल नहीं कर सकते हो. अनफेयर एडवांटेज लेने के लिए आप आपके पोजीशन का नाजायज इस्तेमाल नहीं कर सकते हो. Here we have seen the examples of employer, employee, doctor, patient, solicitor and client and so on. So these were the example of undue influence. Under that we have seen that कि कुछ cases में there is assume that there is an undue influence, and in some of the cases we will have to prove that there was an undue influence. So, that is, one of the party has used his position to obtain a
unfair advantage over other. In today's lecture, we are going to start with a third part of free consent, that is a misrepresentation. Now, what is a misrepresentation? What do you understand by a representation? Representation यानी किसी के सामने कुछ चीज पेश करना या किसी के सामने कोई चीज को आपने बताना, उसकी इंफॉर्मेशन देना, that is called as a representation. And what is a misrepresentation? अगर आप किसी को कोई चीज गलत तरीके से बताते हो या कोई इंफॉर्मेशन को अनट्रूली किसी को देते हो, रॉन्गली किसी को देते हो, तो दैट इज कॉल्ड एज अ मिसरिप्रेजेंटेशन. अगर आप ये मिसरिप्रेजेंटेशन, ये पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन जो आपको पता है कि गलत है और आप किसी को बता रहे हो और आपको पता है कि आप गलत इंफॉर्मेशन पास कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड एज अ fraud, that is intentionally you are doing. However, if you are not aware that whatever information you are passing to the other party is untrue, incorrect, you feel that के ये information correct है, आपको information कहीं से मिली है, आप वो information पे भरोसा करके वो information किसी और को देते हो, तो that representation, that misrepresentation is innocent, and in that case it will be simply called as a misrepresentation. That is, if misrepresentation is innocent, it will be called as a misrepresentation. If misrepresentation is purposely, that means intently, you are aware with that, but still you are passing that untrue information to some other party. आपने जानबूझ के वो किया है, तो then it is called as a fraud. So we'll see this in detail and what has been given under this particular unit. We'll just see to it. What they are giving? Misrepresentation, just refer your screen. A representation means a statement of fact made by one party to other, either before or at the time of the contract, relating to some matter essential to the formation of the contract, with an intention to induce the other party to enter into the contract. Now, this is a very important part. Just see to it. What it says. A representation means a statement of fact made by one party to other, either before or at the time of the contract, relating to some matter essential to the formation of the contract. यानी यहाँ पे आप कोई इंफॉर्मेशन किसी को दे रहे हो और किसके बारे में दे रहे हो? ऐसे फैक्ट के बारे में दे रहे हो जो एसेंशियल्स है, which are necessary for the formation of the contract. अगर वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन आप किसी को दे रहे हो जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में सब्सिडियरी पार्ट है, सेकेंडरी पार्ट है, जो एसेंशियल फैक्ट्स नहीं है, तो देन इट इज नोवेयर रिलेटेड विथ मिसरिप्रेजेंट. यहां पे जो मुद्दे की बात है, उस मुद्दे को आप गलत तरीके से किसी को दे रहे हो, तो देन इट इज कॉल्ड एज अ मिसरिप्रेजेंटेशन. एंड व्हेन इट इज डन पर्पसली, इट इज अ फ्रॉड. Innocently, it will be called as a misrepresentation. Relating to some matter essential, this word is very important, essential to the formation of the contract. And what is an intention? With an intention to induce the other party to enter into the contract. What is an objective? Why you are providing the information? So that the other party should enter into the contract. Here your intention should be like that. Then it falls under this particular unit or section. Further, what it says, it may be expressed by word, written or implied from the act of the conduct of the party. That means you are expressly saying something to the other party or impliedly saying to the other party, and intention is that other party should enter into the contract. A representation when wrongly made, either innocently or intentionally, is termed as misrepresentation. To put in differently, misrepresentation may be either innocent or intentional or deliberate with an intention to deceive the other party. क्या ऑब्जेक्टिव है? सामने वाले का नुकसान हो. दिस इज एन ऑब्जेक्टिव. लेकिन अगर इनोसेंटली आपने वो गलती की है तो वो फ्रॉड नहीं बोला जाएगा, उसको मिसरिप्रेजेंटेशन ही बोलेंगे. लेकिन जानबूझ के अगर आप ये गलती कर रहे हो, जानबूझ के आप गलत इंफॉर्मेशन किसी को दे रहे हो, तो देन इट कैन बी कॉल्ड एज अ फ्रॉड. बोथ द केसेस मिसरिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड, इन बोथ दिस केसेस सामने वाले का नुकसान हो रहा है. सामने वाले का, अगर आप जानबूझ के वो नुकसान करने की कोशिश कर रहे हो तो फ्रॉड.
इनोसेंटली अगर नुकसान कर रहे हो तो देन इट विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू मिसरिप्रेजेंटेशन. In law, innocent misrepresentation is misrepresentation and intentional misrepresentation is termed as fraud. It is termed as fraud. So how it has been defined? According to section 18, misrepresentation includes the following cases. These are the different cases. One by one we are going to refer them. Positive assertion of unwarranted statement of material fact believing them to be true. पॉजिटिव असर्शन का मीनिंग क्या है? किसी के कोई चीज के बारे में, मुद्दे की चीज के बारे में बताना, कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में आप किसी को पॉजिटिव इंफॉर्मेशन दे रहे हो. ऑफ अनवारंटेड स्टेटमेंट यानी उसके पीछे जो इंफॉर्मेशन आप किसी को दे रहे हो उसके पीछे कोई बैकिंग नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है. आपने रूमर्स सुन लिया, सामने वाले के किसी 10 लोगों के बात चल रही है, उस ग्रुप के बातों को आपने सुना, आपके कान तक वो बात पहुंची और आपको ये पता नहीं है कि वो करेक्ट है अनकरेक्ट है. उसके पीछे कोई पॉजिटिव या यू कैन कॉल इट एज कोई वारंटेड इंफॉर्मेशन नहीं है. यानी आपको कोई मुद्दे के सोर्स से इंफॉर्मेशन मिली है, इनसाइडर इंफॉर्मेशन है, ऐसा कुछ नहीं है. आपने रूमर्स सुन लिया और वो इंफॉर्मेशन आप किसी को पास ऑन कर रहे हो, तो इस चीज को आप बोलते हो मिसरिप्रेजेंटेशन. तो व्हाट इट सेज, पॉजिटिव असर्शन ऑफ अनवारंटेड स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट. लेकिन ये किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन आपने देना चाहिए? जो मटेरियल फैक्ट है, जो इममटेरियल है, जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में नेसेसरी नहीं है, जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में जिस बेस पे आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड करेंगे वो बेस की इंफॉर्मेशन आप किसी को दे रहे हो. जैसे कि आई कैन गिव यू द एग्जांपल, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है. इफ यू कॉल इट एज के इफ आई टेल यू दैट दिस पर्टिकुलर पेन इज मेड इन चाइना, तो जैसी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा कि दिस पेन इज मेड इन चाइना, आपके माइंड में एक इंफॉर्मेशन आएगी कि चाइनीज प्रोडक्ट है, इसका कोई वारंटी नहीं है, ये कुछ ज्यादा चलेगा नहीं. लेकिन अगर ये सेम पेन के बारे में मैं इंफॉर्मेशन आपको देता हूं कि दिस पेन इज मेड इन यूएस, तो आप ये इंफॉर्मेशन सुन के आपके दिमाग में क्या होगा कि अगर ये यूएस में बना हुआ पेन है तो ये बहुत ज्यादा चलेगा और यूएस है तो ये क्वालिटी विल बी वारंटेड. तो दिस इज कॉल्ड एज अ मटेरियल फैक्ट. तो इस मटेरियल फैक्ट को मुझे कैसा ट्विस्ट करके आपको बताना है मेरे पे डिपेंड है. अगर मैं ये चाइनीज पेन को अगर मैं आपको बोलता हूं कि दिस पेन इज मेड इन यूएस, दो आई एम अवेयर दैट दिस पेन इज मेड इन चाइना, बट स्टिल मैं आपको इंफॉर्मेशन गलत दे रहा हूं कि ये पेन यूएस में बना हुआ है, तो दिस विल बी कॉल्ड एज अ मिसरिप्रेजेंटेशन एंड दिस मिसरिप्रेजेंटेशन विल बी टर्म एज फ्रॉड. हाउएवर ये पेन मैंने जिससे परचेस किया उसने मुझे बताया कि दिस पेन हैज बीन मेड इन यूएस और मैंने वही इंफॉर्मेशन आपको पास की, लेकिन मैंने इसके क्रॉस चेक्स नहीं किए, मैंने ये पता लगाने की कोशिश नहीं की कि ये जो इंफॉर्मेशन मुझे दे रहा है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है. मैंने उससे सुना, उससे पेन परचेस कर लिया और अब मैं आपको बेच रहा हूं, उसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं बिना क्रॉस चेक, बिना फैक्ट को चेक किए बिना मैं इंफॉर्मेशन पास कर दे रहा हूं. तो इसको आप बोलेंगे मिसरिप्रेजेंटेशन. मैं सही समझ रहा हूं और वो इंफॉर्मेशन, जैसे कि आप व्हाट्सएप मैसेजेस किसी को फॉरवर्ड करते हो विदाउट चेकिंग द फैक्ट्स whether it is correct or whether it is incorrect. You just receive the information, you believe on that information, you pass that information to someone else, so this will be called as a misrepresentation. However, if you receive an information, you are aware that this information is false, but still you are passing that information to someone else on the same platform, then it will be called as a fraud. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? If a person makes an explicit statement of a fact not warranted by his information, that is without any reasonable ground under an honest belief as to its truth, though it is not true, there is a misrepresentation. ये भरोसा करके कि सामने वाला मुझे जो दे रहा है इंफॉर्मेशन वो करेक्ट है, वो इंफॉर्मेशन मैंने आपको पास ऑन कर दी, तो इसे बोला जाएगा मिसरिप्रेजेंटेशन. बराबर. Example, some of the examples will refer.
A says to B, who intends to purchase his land, my land produces 10 quintals of wheat per acre. A believes the statement to be true, although he did not have sufficient ground for the belief. Later on, it transpires that the land produces only 7 quintals of wheat per acre. This is misrepresentation. आपने कोई इंफॉर्मेशन किसी को दी बिना फैक्ट को चेक किए, आपने फैक्ट्स चेक नहीं किया. अगर मैं आपको कोई इंफॉर्मेशन दे रहा हूं तो देयर हैज टू बी सपोर्टिव पार्ट ऑफ दैट द फैक्ट हैज टू बी चेक्ड बिफोर पासिंग द इंफॉर्मेशन. इफ आई पास सर्टेन इंफॉर्मेशन विदाउट चेकिंग द ट्रूथ, तो वो और बाद में पता चलता है कि वो इंफॉर्मेशन जो दी गई है वो गलत है, तो देन इट इज कॉल्ड एज अ मिसरिप्रेजेंटेशन. तो यहां पे क्या हो रहा है कि ए सेज टू बी हु इंटेंड्स टू परचेज, ए बी को अपना लैंड बेचना चाहता है और ए बी को बोलता है कि ये लैंड इतना क्विंटल प्रोड्यूस देगा, इतना क्विंटल प्रोडक्शन देगा. बराबर, ये इंफॉर्मेशन उसने दे दी बिना चेक किए. उसने चेक ही नहीं किया कि जो इंफॉर्मेशन वो दे रहा है सही है या गलत है. उसे इंफॉर्मेशन मिली होंगी या फिर बिना चेक किए उसने, अपन बोलते हैं ना हवा में बात कर रहा है, तो ऐसी हवाइया छोड़ दी और बाद में पता चला कि जो भी इंफॉर्मेशन दी वो गलत थी, तो इसे बोला जाएगा मिसरिप्रेजेंटेशन. लेकिन अगर ए को पता था कि ये इंफॉर्मेशन जो मैं आपको दे रहा हूं वो गलत है, तो इसे बोला जाएगा फ्रॉड. लेकिन अगर उसे पता नहीं है, उसे लग रहा है कि वो जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, हालांकि वो चीज गलत है लेकिन उसको पता नहीं है, तो इससे बोला जाएगा मिसरिप्रेजेंटेशन. What it further says, Anil makes a positive statement to Babu Rao that Chinmay will be made the director of the company. Now listen carefully. Anil makes a positive statement to Babu Rao that Chinmay will be made the director of the company. Anil makes the statement on the information derived not directly from Chinmay but from Murari. Babu Rai applies for shares on the faith of the statement which turn out to be false. This amounts to misrepresentation. मुझे मार्केट से कोई इंफॉर्मेशन मिली कि मिस्टर एक्स विल बी मेड द डायरेक्टर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, और मैंने वो इंफॉर्मेशन आपको दे दी कि मैंने ऐसा सुना है कि एक्स रिलायंस इंडस्ट्री का डायरेक्टर बनने वाला है. आप ये सोच के रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स परचेज कर लेते हो, हालांकि जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी उसका कोई बेस नहीं है. मैंने मार्केट में हवाइया इंफॉर्मेशन सुनी और आपको दे दी, तो इसे बोला जाएगा मिसरिप्रेजेंटेशन. बाद में आपको पता चला कि एक्स नेवर मेड अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, दिस विल बी कॉल्ड एज अ मिसरिप्रेजेंटेशन. फर्दर व्हाट इट सेज, A believed the engine of his motorcycle to be in excellent condition. A, without getting it checked in a workshop, told to B that the motorcycle was in excellent condition. On this statement, B bought the motorcycle whose engine proved to be defective. Here's A's statement is misrepresentation and the statement turned out to be false. Simple. Any information you derive, you pass on the information, or जो आपके पास प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की आप इंफॉर्मेशन किसी को दे रहे हो बिना फैक्ट को चेक किए. अगर आप किसी को दे रहे हो और बाद में जो भी इंफॉर्मेशन आपने दी वो गलत निकल जाती है, तो ऐसी इंफॉर्मेशन को हम बोलेंगे मिसरिप्रेजेंटेशन. सेकंड क्या बोल रहा है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी. व्हाट इट सेज, सेकंड वन, breach of duty which brings an advantage to the person committing it by misleading the other to his prejudice. Breach of duty, breach का मीनिंग है कि प्रॉमिस करना बाद में उस प्रॉमिस को परफॉर्म नहीं करना, तो दैट इज कॉल्ड एज अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी. which brings an advantage to the person committing it. मैं प्रॉमिस कर रहा हूं और बाद में वो प्रॉमिस को परफॉर्म नहीं कर रहा हूं. क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि उससे मुझे एडवांटेज मिल रहा है और सामने वाले का नुकसान हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी. व्हाट इट सेज, दिस क्लॉज covers the cases where the statement when made was true, but subsequently before it was acted upon, it became false to the knowledge of the person making it. In such a case, the person making the statement comes under an obligation to disclose the change in the circumstances to the other party
otherwise he will be guilty of misrepresentation. Let's take the example and try to understand this particular point. What it says: A, before signing a contract with B for the sale of the business, correctly state that the monthly sale are rupees 50,000. Negotiation lasted for 5 months. When the contract of sale was signed, during this period the sales dwindled to rupees 5,000 a month. A unintentionally keep quiet. It was held that there was misrepresentation and B was entitled to resign the contract. Now what is it says? के इस एग्जाम्पल में हुआ क्या कि मैंने आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ बिजनेस किया, आई वांट टू सेल माय बिजनेस टू यू, और मैंने अपने बिजनेस के बारे में एक इंफॉर्मेशन आपको दी जो कि करेक्ट है. मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी कि मंथली सेल ऑफ माय बिजनेस इज रुपीज 50,000, which can be cross check from the financial statement of my business. Financial statement से आप cross check कर सकते हो कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरा monthly sale 50,000 है. आपने you can check with the financial statement where you can see that annual turnover is rupees 50,000 multiplied by 12 rupees 6 lakh. तो ये information मैंने आपको दी. My intention is to sell the business to you. The information is absolutely correct. ये जो प्रोसीजर चला, जो मैं आपको बिजनेस पे, इट कैन नॉट बी, आई मीन इफ आई वांट टू सेल माय बिजनेस टू यू, दैट इज नॉट अ प्रोसीजर ऑफ अ डे और टू के विद इन अ डे और टू मैं बिजनेस बेचना चाहता हूं, एक दिन के अंदर मैं पूरा बिजनेस आपको बेच दूंगा, आपसे पैसा लूंगा और चला जाऊंगा. ऐसा नहीं है. ये प्रोसीजर इज अ टाइमली प्रोसीजर. दैट मीन्स इट टेक्स 4 to 5 months टू कैरी आउट ऑल द प्रोसीजर्स. मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं, आप एडिशनल इंफॉर्मेशन मुझसे मांगते हो एंड सो ऑन. तो इसमें एक कुछ पीरियड चला जाता है. तो इसमें हुआ क्या कि मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन दी कि मेरा मंथली सेल 50,000 रुपीज का है. आपने वो इंफॉर्मेशन को बिलीव किया, लेकिन बातचीत के दौरान 6 महीने 5 महीने निकल गए. और उस दौरान हुआ क्या, जैसे कि ये पर्टिकुलर पीरियड, अभी लॉकडाउन का पीरियड चालू है, तो ऑब्वियसली द बिजनेस जो पहले था वो अभी नहीं हो रहा है. तो ये पीरियड चला गया और ये ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड मैंने आपको वो इंफॉर्मेशन जो पहले थी 50,000 की, द बिजनेस हैज बीन रिड्यूस टू रुपीज 5,000 पर मंथ. लेकिन ये इंफॉर्मेशन मैंने आपको कुछ बताई नहीं जो मैं बताना चाहिए था कि बिजनेस पहले नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में 50,000 रुपीज था, अभी एबनॉर्मल सिचुएशन में द बिजनेस हैज कम डाउन टू रुपीज 5,000. लेकिन ये इंफॉर्मेशन मैंने आपको नहीं बताई, आपसे छुपा ली. ये सोच के छुपा ली कि ठीक है अभी एबनॉर्मल सिचुएशन है तो 5,000 रुपीज पर मंथ है, हो सकता है आगे फिर से 50,000, हो सकता है आगे 50,000 हो, रुपीज 1 लाख हो या ना हो, लेकिन फिर भी मुझे आपको ये इंफॉर्मेशन देनी चाहिए थी जो मैंने आपको नहीं दी और आपने मेरे से वो बिजनेस परचेस कर लिया. तो इस केस को भी बोला जाएगा मिस रिप्रेजेंटेशन. अगर बातचीत के दौरान कोई चेंजेस हो रहे, जो पहले था वो अब नहीं रहा, तो वो इंफॉर्मेशन भी मैंने आपको देना चाहिए. अगर मैं वो इंफॉर्मेशन आपको नहीं देता हूं तो देन दैट ऑल्सो विल बी कॉल्ड एज अ मिसरिप्रेजेंटेशन. व्हाट इट फर्दर सेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, note that a partial non-disclosure may also constitute a misrepresentation. इसका मीनिंग क्या है कि अगर मैं आधी अधूरी इंफॉर्मेशन आपको देता हूं तो वो भी बोला जाएगा मिसरिप्रेजेंटेशन. 10 फैक्ट्स अबाउट द प्रोडक्ट. एक प्रोडक्ट के बारे में 10 इंपॉर्टेंट मटेरियल फैक्ट्स है, लेकिन मैं 6 फैक्ट्स के बारे में बताता हूं, 4 के बारे में नहीं बताता हूं. 4 के बारे में इसीलिए नहीं बताता हूं कि अगर मैं वो 4 फैक्ट्स के बारे में भी आपको बताता हूं तो हो सकता है आप आपके डिसीजन को रिकंसिडर करो. 6 फैक्ट्स को बताता हूं तो आप रिकंसिडर नहीं करेंगे, आप डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट में एंटर्ड हो जाएंगे. लेकिन अगर मैं 4 फैक्ट्स के बारे में बता देता हूं तो आई फील दैट यू आर गोइंग टू रिकंसिडर योर डिसीजन. तो इस वजह से मैं 6 के बारे में बताता हूं, 4 के बारे में नहीं बताता हूं, तो इसे भी बोला जाएगा मिस रिप्रेजेंटेशन. What it further says, causing mistake about the subject matter innocently, intentionally नहीं, innocently. Causing mistake about subject matter. Subject matter is a important facts of the contract, important facts about the object, जिस प्रोडक्ट का
आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हो उस प्रोडक्ट के बारे में, देयर इज अ मिस्टेक एंड दैट मिस्टेक इज इनोसेंट. व्हाट इट सेज, if one of the party induces the other though innocently to commit a mistake as to the quality or nature of the thing bargain, there is a misrepresentation. Commit a mistake as to the quality or nature of the thing bargain यानी जिस प्रोडक्ट के बारे में अपनी बातचीत चालू है, तो that is called as a bargain. There is a, let's try to understand with the help of the example. In a contract of sale of 500 bags of wheat, the seller made a representation that no sulfur has been used in the cultivation of wheat. Sulfur is a pesticide. Sulfur was, however, had been used in 5 out of 200 acres of land. The buyer would not have purchased the wheat if the seller has disclosed the fact. There is a misrepresentation. अब हुआ क्या यहाँ पे कि मेरे पास सपोज 200 एकर्स ऑफ लैंड है जिसमें मैंने वीट का कल्टीवेशन किया है. नाउ आई वांट टू सेल दैट पर्टिकुलर लैंड. मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी कि ये 200 एकर्स ऑफ लैंड इज वेरी फर्टाइल लैंड. यहाँ पे वीट का प्रोडक्शन बहुत जबरदस्त होता है. आप ये अगर परचेस करोगे तो यू मेक अ गुड प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ द वीट. और वीट पूरा ऑर्गेनिक है, यहाँ पे कोई भी पेस्टिसाइड्स इसमें यूज नहीं हुए. हालांकि 200 acres में से 5 acres पे there was a pesticide use because that particular land में कुछ problems थे. Whatever, I have used 5 acres of land पे I have used the sulfur, that is a pesticide, और remaining 195 acres of land पे I have not used fertile, I have not used any pesticides, and that 195 acres of land was very fertile, and whatever grown on that particular 195 acres of land was purely organic material. Now यहाँ पे मैंने सिर्फ 5 एकड़ पे कुछ पेस्टिसाइड्स यूज किए और मेजॉरिटी पार्ट पे मैंने I have not used the pesticide, but still here there was my duty to pass the information. लेकिन हो सकता है मिस्टेकनली हुआ क्या, मेरे माइंड से स्लिप हो गया, मुझे याद नहीं रहा कि मैंने वो 5 एकड़ लैंड पे सल्फर यूज किया है. मेरे ध्यान से निकल गया और मैंने आपको वो इंफॉर्मेशन पास नहीं की. जानबूझ के नहीं किया है, इनोसेंटली किया है. मैंने आपको वो पर्टिकुलर 200 एकर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जिसमें ये इंफॉर्मेशन मेरे माइंड से स्लिप हो गया. तो यहां पे बोला जाएगा कि आपने वो 5 एकड़ लैंड पे जो पेस्टिसाइड यूज किया है जिसकी इंफॉर्मेशन आपने सामने वाले पार्टी को नहीं दी, तो वो भी बोला जाएगा मिस रिप्रेजेंटेशन. So what is essentials of misrepresentation? This is very important. Just refer to your screen. From the foregoing discussion, it follows that alleging misrepresentation on following 4 things are necessary. First one is there should be a representation made innocently with an honest belief as to its truth and without any desire to deceive the other party either expressly or impliedly. What it says, there should be a representation made innocently. Innocently यानी कोई भी तरीके की मेरे दिमाग में कनिंगनेस नहीं है, कोई भी तरीके का छल कपट नहीं है. मैं वो इंफॉर्मेशन मुझे जैसी आई या जिस चीज के बारे में मैं जानता हूं वो इंफॉर्मेशन मैंने पास की विथ एन ऑनेस्ट बिलीफ. ऑनेस्ट यानी मैं समझता हूं कि जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं वो करेक्ट है. अगर मैं समझता हूं कि जो इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं वो गलत है, तो देन इट इज नॉट कॉल्ड मिसरिप्रेजेंटेशन, इट विल बी कॉल्ड एज अ फ्रॉड. ऑनेस्ट बिलीव एज टू इट्स ट्रूथ एंड विदाउट एनी डिजायर टू डिसीव. यहाँ पे मेरा इंटेंशन आपको धोखा देने का नहीं है, तो देन इट इज कॉल्ड एज अ मिसरिप्रेजेंटेशन. एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि आई एम डीलिंग इन फर्नीचर. आई एम अ फर्नीचर डीलर, होलसेल डीलर. मैंने एक 1000 चेयर्स एक सुप्रीम इंडस्ट्रीज से 1000 चेयर्स का लॉट मैंने मंगाया. उसमें से वन ऑफ द लॉट ऑफ 100 चेयर्स वाज नॉट अप टू द मार्क, क्वालिटी वाइज करेक्ट नहीं है. उन्होंने मुझे वो लॉट भेज दिया, उनको भी पता नहीं था, उन्होंने वो लॉट मुझे भेजा. मैंने अपने गोडाउन में वो लॉट रखा है. मुझे ये पता नहीं है कि उस 1000 चेयर्स के लॉट में वन ऑफ द लॉट ऑफ 100 चेयर्स आर नॉट गुड इनफ.
एक कस्टमर मेरे पास आया जिसने मुझे 200 चेयर्स का डिमांड किया। मैंने उसमें से 200 चेयर्स 1000 चेयर्स में से उसको दे दी। उस 200 चेयर्स के लॉट के अंदर वो 100 चेयर्स का लॉट भी चला गया। तो यहाँ पे मुझे पता नहीं है, मुझे जैसी चेयर्स आई गोडाउन में रखी थी, मैंने अपने आदमी को बोला कि उसमें से 200 चेयर्स का लॉट दे दो। उसने वो उठा के दे दिया, उसने परचेस कर लिया। तो यहाँ पे आई हैव डन अ मिस्टेक बट दैट इज अ इनोसेंट मिस्टेक, तो इसे बोला जाएगा मिस रिप्रेजेंटेशन। सेकेंड क्या बोल रहा है, द रिप्रेजेंटेशन मस्ट रिलेट टू द फैक्ट मटेरियल टू द कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट मियर ओपिनियन और हियरसे र्यूमर। यानी अगर मैं कोई इंफॉर्मेशन पास कर रहा हूं तो वो मुद्दे की बात होनी चाहिए। वो मुद्दे, जिस मुद्दे पे आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर करोगे उस मुद्दे की इंफॉर्मेशन मैं आपको अगर दे रहा हूं तो देन इट इज कॉल्ड एज अ, और वो इंफॉर्मेशन जो मैं आपको दे रहा हूं वो गलत है तो देन इट इज कॉल्ड एज अ मिस। अगर कोई 10 चीजें है उसमें से वन ऑफ द थिंग्स विच इज नॉट मटेरियल, विच इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूं जो मटेरियल फैक्ट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ द प्रोडक्ट नहीं है, तो उस चीज के बारे में मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं बोला जाएगा इवन दो इट इज इनकरेक्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बुक है, वो बुक मुझे मिली और वो बुक मैंने आपको पास ऑन की, उसमें से लास्ट पर्टिकुलर पेज जो है वो बराबर प्रिंट नहीं था और वो अनइम्पॉर्टेंट था। दैट मीन्स यू कैन से दैट कि इट वाज अ पेज वेयर यू यूज्ड टू नोट डाउन द नोट्स। तो बाकी के पेजेस वर प्रॉपरली प्रिंटेड और वो बुक मैंने आपको सेल की जिसमें से वन ऑफ द पेज विच इज, तो यहाँ पे जो पेज इंपॉर्टेंट नहीं है और उसके बारे में मैंने आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी तो यहाँ पे मिस रिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड नहीं बोला जाएगा। द रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी और मस्ट हैव बिकम अनट्रू। तो जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी अगर वो बाद में जाके अनट्रू हो जाती है तो देन यू कैन कॉल इट एज अ मिस रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि मैंने आपको बोला कि मेरे बिजनेस का सेल इन अर्लियर इयर्स वाज 50,000 पर मंथ, ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड इट केम डाउन टू 5,000। मैंने आपको बताया नहीं और आपने मेरे से बिजनेस परचेस किया और बिजनेस परचेस करने के बाद लॉकडाउन हट गया एंड अगेन आपको सेल 50,000 रुपीज पर मंथ का मिलना चालू हो गया या 50,000 के ऊपर मिलना चालू हो गया। तो यहाँ पे इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ मिस रिप्रेजेंटेशन। The representation must have been instrumental in inducing the other party to enter into. What is an objective? कि अगर मैं इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं जो मुद्दे की इंफॉर्मेशन है, जो मटेरियल फैक्ट के बारे में है और मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि उस इंफॉर्मेशन के बेस पे आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर करो, तो ये सब चीजें अगर होती है तो देन इट कैन बी कॉल्ड एज अ मिस रिप्रेजेंटेशन। What it further says, इफेक्ट ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन, क्या इफेक्ट होंगे अगर आपने सामने वाले को मिस रिप्रेजेंटेशन के बेस पे कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर करवाया तो व्हाट विल बी द आउटकम। आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट where there is no free consent, where there is a coercion, where there is a undue influence, where there is a fraud, where there is a misrepresentation, the contract will be voidable at the option of the aggrieved party। तो यहाँ पे अगर मैं misrepresentation के बेस पे आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर करता हूं तो you are entitled to cancel the contract अगर वो इंफॉर्मेशन जो मटेरियल फैक्ट के बारे में मैंने आपको दी और बाद में वो अनट्रू हो जाती है। तो what it says, in the case of misrepresentation, the aggrieved party has two alternatives. He can resign the contract, treating the contract as voidable, or he may affirm the contract and insist that he shall be put in the position in which he would have been if the representation made had been true. तो दो ऑप्शन है। First option is either to cancel the contract or otherwise second one is he may affirm the contract and insist that he shall be put in the position in which he would have been if the representation made have been true. That means he can enforce the contract. जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे आई वॉज डीलर इन चेयर, मैंने 1000 चेयर्स का लॉट मंगाया सुप्रीम इंडस्ट्रीज से जिसमें 100 चेयर्स का सेट जो है वो बराबर नहीं है, उसका क्वालिटी बराबर नहीं है एंड इट इज एब्सोल्युटली इन पुअर कंडीशन और उसमें से मैंने आपको 200 चेयर्स सेल कर दिए बिना ये जाने कि वो 200 चेयर्स बराबर है या नहीं। तो दिस इज कॉल्ड एज अ मिस रिप्रेजेंटेशन। अब सामने वाले ने मेरे से वो चेयर्स परचेस करके लेके गया और उसमें से उसको पता चल गया कि 100 चेयर्स का कंडीशन बराबर नहीं है। तो व्हाट ही कैन डू, ही कैन कम बैक टू मी,
he will return those 200 shares, मैं उसको उसका पैसा रिटर्न दे दूंगा. This is called as a cancellation of contract. He can resign the contract. और अदरवाइज वो क्या करेगा, वो मुझे बोलेगा कि 200 शेयर्स में से 100 शेयर्स बराबर नहीं है, वो 100 शेयर्स का पैसा मैं उसको लौटा दूंगा, या फिर वो 100 शेयर्स मैं उसको चेंज करके दूंगा, एक्सचेंज करके दूंगा. 100 शेयर्स जो बराबर नहीं है वो उससे रिटर्न लूंगा और न्यू 100 शेयर्स उसको दूंगा. तो यू कैन डू दैट. सेकेंड एग्जाम्पल, अगर बुक मैं सेल करता हूं, बुक्स के पेजेस बराबर प्रिंटेड नहीं है, तो यू हैव एन ऑप्शन टू कम बैक. You can cancel the contract, I will return the money to you, और otherwise मैं आपको उसके बदले में न्यू बुक दूंगा. तो this is an option available. Misrepresentation does not entitle the aggrieved party to claim the damages by way of interest or otherwise for expenses incurred. Very very important fact about misrepresentation. मिसरिप्रेजेंटेशन में आप आपके कॉन्ट्रैक्ट को या कैंसिल कर सकते हो, या फिर आप मुझे डिमांड कर सकते हो कि अगर आपने जो बोला था वो सही होता था तो आपके पास पोजीशन क्या रहती थी, तो वो मैं सही करने की कोशिश करूंगा. यानी जैसे 200 मैंने 100 शेयर्स का एग्जांपल दिया, वो मैं आपको रिटर्न लूंगा और एक्सचेंज करके दूंगा. लेकिन आप मेरे से कोई कॉम्पेंसेशन मांग नहीं सकते हो, यानी एक्स्ट्रा अमाउंट आप मांग नहीं सकते हो. जैसे कि बुक आपने मेरे से परचेस करके लेके गया, घर जाके आपने उसका रैपर खोला, आपने ओपन किया तो पता लगा कि वो बुक में प्रिंटिंग प्रॉपर नहीं है, इट इज इन अनरीडेबल फॉर्म, यू कैन नॉट रीड इट प्रॉपरली. आप मेरे पास आते हो तो व्हाट यू कैन डिमांड इज, यू कैन डिमांड योर मनी, के बुक वापस लेके यू कैन डिमांड योर मनी, और अदरवाइज यू कैन डिमांड के बुक चेंज करके दो. But you cannot ask me to pay the compensation. Compensation in the sense you cannot say कि मैं बुक यहां से लेके गया, मेरा ऑटो का खर्चा 100 रुपीज हुआ, रिटर्न आने का 100 रुपीज हुआ, और बुक फॉर एग्जाम्पल 200 रुपीज की है, तो यू कैनॉट आस्क मी कि 200 रुपीज फॉर बुक्स आप मुझे रिटर्न दे दो और 200 रुपीज का मुझे कॉम्पेंसेशन जो मेरा नुकसान हो गया है, तो यू पे मी 400 रुपीज फॉर 200 रुपीज बुक. यू कैनॉट से दैट. मैं क्या कर सकता हूं, आपसे बुक लेके आपको 200 रुपए रिटर्न दूंगा, या उसके बदले में आई एम गोइंग टू गिव यू द न्यू बुक, बट यू कैन नॉट डिमांड एनी एक्स्ट्रा अमाउंट इन केस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन. However, extra amount can be demanded in the case of fraud that we are going to refer later. But as far as misrepresentation is concerned, you can either cancel the contract or you can enforce the contract, but you cannot ask me to pay the extra amount or a damages or a compensation or an interest. In example, A innocently in good faith tells B that his TV set is made in Japan. B thereupon buys the TV set. However, it comes out to be an Indian make. A is guilty of misrepresentation. B may either avoid the contract or may insist on its being carried out. In the latter case, B may either ask for replacing the set by a Japanese make set, or may keep the Indian make set and claim the difference in price between the set and the Japanese make set. That is what? कि अगर मैंने आपको एक टीवी सेट सेल किया है, ये आई बिलीव दैट टीवी सेट हैज बीन मेड इन जापान, और मैंने आपको वो बेच दिया, ये इंफॉर्मेशन आपको दी कि दिस टीवी इज मेड इन जापान. बाद में आपको पता लगा कि वो टीवी सेट इज नॉट मेड इन जापान बट इट हैज बीन मेड इन इंडिया. तो व्हाट यू कैन डू ओवर हियर इज, आप मुझे वो टीवी सेट रिटर्न करोगे, मैं आपको पैसा रिटर्न दे दूंगा, या फिर वो टीवी सेट वापस लूंगा, उसके बदले में जापानीज मेड टीवी सेट मैं आपको दूंगा. या फिर आप बोलते हो कि ठीक है आप इंडियन मेक टीवी सेट रख लोगे लेकिन जापानीज मेक और इंडियन मेक के जो प्राइस में डिफरेंस है वो प्राइस मुझे आपको देना पड़ेगा. बट यू कैन नॉट आस्क मी फॉर एन एक्स्ट्रा अमाउंट और एन इंटरेस्ट और एन कॉम्पेंसेशन. सो दैट इज ऑल अबाउट मिसरिप्रेजेंटेशन. तो मिसरिप्रेजेंटेशन क्या है कि रिप्रेजेंटेशन जो गलत तरीके से सामने वाले को देना, लेकिन जो दे रहा है, जो रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, उसको पता नहीं है कि वो गलत इंफॉर्मेशन पास कर रहा है. वो तो यही सोचता है कि जो इंफॉर्मेशन वो उसे दे रहा है वो करेक्ट है, क्योंकि उसको इसके बारे में, गलत इंफॉर्मेशन के बारे में उसको पता ही नहीं है. तो इसे आप बोलोगे मिसरिप्रेजेंटेशन. व्हाट इज एन इफेक्ट कि अगर मिसरिप्रेजेंटेशन होता है तो एग्रीव पार्टी कैन आइदर कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट और अफर्म द कॉन्ट्रैक्ट, बट ही कैन नॉट डिमांड फॉर कॉम्पेंसेशन. होप you have understood the point of misrepresentation. Still, if you have any doubt, please ping me. I'm going to solve all your doubt. Bye everyone.